I think both of you spoke about your losses and worst investments, but best investment की अगर बात करो तो दोनों के केसेस में what has been the best investment? आपने कब इन्वेस्ट किया, कितने में किया, कितना हुआ एंड रिटर्न कितना था? जस्ट क्विकली. सो मेरा क्विकली माय बेस्ट इन्वेस्टमेंट वाज मैंने पीएसयू फंड में डाला था 2020 में, एसआईपी की थी 1.5 लाख रुपए की। 4 साल में मैंने कुछ 37 लाख्स डाल दिए थे एसआईपी कर करके, और लास्ट ईयर मैंने जब उसको बेचा तो 97 लाख्स पे बेचा था। तो 4 years CAGR was 56%। 56%. Yes, Wow. because Mutual fund में. it was a mutual fund, it was a sector fund. Exactly. It was a sector fund, and for me logic is very, I'm a contra investor, I've told you earlier, जो चीज चली नहीं है 10 साल तो मैं उसमें पिक करता हूँ, एंड देन 3-4 साल में जब मुझे लगता है बहुत अब सारी दुनिया आ रही है एंड यू मेड अ किलिंग, that was the best. Worst investment has been an infrastructure fund. 10 साल तक जीरो रिटर्न था, आज की डेट में 15 साल होने को आ रहे हैं, उसका रिटर्न 13% कैगर है। So that is my worst investment. अच्छा, तो worst investment भी आपका 13% का 13% कैगर है, which is good. Yeah, which is good. So, एक चीज जैसे इन्होंने बताया ना, लैंड में आपका स्टैंडर्ड डिविएशन जिसको हम बोलते हैं ना, हाईएस्ट और लोएस्ट में जमीन रात दिन का फर्क है। म्यूचुअल फंड में आपका ज्यादा नहीं होता है, तो मेरा एवरेज रिटर्न वाज 18%। ये तो चलो 4 साल का 56 है, 10 साल में 56 नहीं होता है। योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर 10 year पीरियड कैन बी 22% कैगर और 23% कैगर, ये हाईएस्ट जा सकता है। इट्स अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, तो आपका खराब भी 12-13 ही जा सकता है, उससे खराब नहीं जाता है। मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा जो वर्स्ट इन्वेस्टमेंट इट इज गिवन द डबल द रिटर्न ऑफ एफडी 13-14 साल में। तो द रेंज इज बिटवीन 12-13 to 22 and my portfolio CAGR has been 18%. समझ गया. So this is the game. What has been your My best numbers? has been I'd bought a land for, this is in 2022, I'd bought a land for 1.2 crores, 3 lakh, 1.2 crores and sold it for double in 10 months. Oh. Double in 10 months. ये तो comparison ही नहीं है. Yes. But इसमें we had done some changes to the land. We had done some changes to the land as well. तो उसमें मेरा गया होगा अराउंड 2.4, 20 लाख गए उसमें अराउंड some changes. So net आया होगा अराउंड 80. So again ये लैंड में है तो स्टॉक्स में हो सकता है आप इसको, लेकिन एक और चीज आई लाइक टू टेल यू, you can't do this in scale. ये opportunistic buy, you can't do this in scale. समझ गया. ये स्केल में कर सकते हैं. हाँ, this is one opportunity. You can't really do this at that level कि you play this at 1,000 crore level game. It's not scalable. This is one opportunity. Okay, got it. ये डील अच्छी है. Let's take it and let's flip it. ऐसे एक साल में कितने अपॉर्चुनिटीज आते होंगे आपके लाइफ में? 3 से 4, जिसमें भी tend to miss many opportunities. Liquidity issues होते हैं, कभी cash flows issues होते हैं. Sometimes we get a very good opportunity, but that very good opportunity is very expensive. 50 करोड़ का लैंड आया है. That land could be worth 80 crores in the market, जो 50 करोड़ में शायद आएगा, पर 50 करोड़ है ही नहीं. टिकट तो क्या कर लोगे आप उसका? So that way. Fair. मेरे को एक इंटरेस्टिंग सवाल है. तो आपने बताया कि आपके पास एक घर है जो आपने रेंट पे दिया है एंड आप खुद रेंट पे रह रहे हो, राइट? तो उस घर में पेरेंट्स रह रहे हैं बेसिकली. आई एम लिविंग ऑन रेंट इन महालक्ष्मी. अच्छा, ओके. बट यू हैव योर हाउस बट स्टिल यू आर लिविंग ऑन रेंट. Yes, because the rental yield is only 2.5%. Okay. So now it's increased to about 3.5% in better buildings with amenities. This building has, I think, one of the highest rental yields for residential. So rental yield is great. My business, and I have my own businesses, right? So another argument for me is कि यार मैं equity में, म्यूचुअल फंड में क्यों डालूं, PMS में क्यों डालूं, अपनी कंपनी में वही पैसा डालूं. बिल्कुल, I agree. Right? As the founder and CEO, I'll know exactly the multiple. Since you're a believer of real estate, you have to have skin in the game also. Right. Just like I am a believer in mutual funds, I have my entire money and I believe, good or bad तो time बताएगा, but in that way I agree with him कि आप अगर believe करते हो और आप दुनिया को advise कर रहे हो कि आप real estate में डालो, 80% of your assets at least should be in real estate, and which he is doing in that sense. And in my company as well, for example, I have an edtech called EdState. It's a pure edtech. We make courses on real estate, but it's got nothing to do with real estate as such. It's a tech company, right? A marketing and sales and tech company, a tech company. So the other argument is यार कि जो liquidity आई मेरे पास, now I should put the liquidity in that company. मैं दूसरे की कंपनी में पैसा क्यों डालूं? Right? Why should I give ITC money or an HDFC money? Why should I go on the equity route? खुद की कंपनी है. Reinvest in your own company. No, but it's about diversification. That also becomes like diversify करने के लिए तो you can put it, right? No, but it becomes
that challenge for you in your head as an entrepreneur, because when you're a small company, when you're a startup, you don't count 15%, 80, you talk about multiples because you're so small, the base is only so small. So you get torn in your head, right? Yeah. You want to diversify at the same time, but Correct. आपको खुद की कंपनी ग्रो करनी है, so Hmm. कहाँ डाले आदमी? सही बात है. So Gajendra, like इंडिया में अभी asset allocation कैसे divided होगा? So how is wealth divided of the Indian citizens in So which very asset class? very interesting. So I want to show our viewers this chart. This is a very interesting. ये जेफरीज ने बनाया था, मार्च 24 का है डेटा, सो Okay. एक साल पहले का ही है. Apparently 50% of the money is in properties. Oh, India में. property is basically Physical real assets. estate. तो Okay. आप इंडिया में ना दो चीज फिजिकल है, प्रॉपर्टी और गोल्ड. तो ये दोनों मिला लो तो 65% है. ये प्रॉपर्टी मतलब बिल्डिंग लैंड भी इंक्लूड होगा इसमें? सो देखिए, अगर अब वो कैश कंपोनेंट तो इसमें काउंट वैसा नहीं है. जो भी एक गवर्नमेंट आरबीआई भी ये डेटा कलेक्ट करती है, उसके हिसाब से उन्होंने ये फिगर बताया है. तो ऑफिशियल फिगर टाइप्स है ये, बट आप 50 से ज्यादा ही होगा, जो रियल वैल्यू होगा वो 50 से ज्यादा ही मान के चलो आप है, बट 50 तो है ही है. तो इसीलिए आप इंसान, कोई भी आप फैमिली देखो ना, तो उनका ऑन एन एवरेज देखो 50 to 70% ऑफ देयर नेटवर्थ इज टाइड ईदर इन देयर ओन सेल्फ कंजम्पशन हाउस, या फिर एक और घर लिया हुआ है रेंटल पे देने के लिए. तो 70-80% चला जाता है, फिर 10% गोल्ड में चला जाता है. बाकी 10% इज लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट एंड म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स एंड इंश्योरेंस वगैरह थिंग. Very interesting data actually. हाँ, अब ये धीरे धीरे फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ मूव हो रहा है. लॉट ऑफ यंग पीपल आर नॉट पुटिंग मनी इनटू प्रॉपर्टीज बिकॉज दे डोंट नो कि वो कहाँ रहेंगे, क्या रहेंगे. बट अभी तक रहा है. और देखो एक चीज समझो कुशल, ये हजारों साल की हमारी ब्रेन फीडिंग रही है ना, बिकॉज पहले फाइनेंशियल मार्केट्स थे नहीं. तो प्रॉपर्टी और गोल्ड ही था जो आप ट्रस्ट कर सकते हो, विजिबल है, टेंजिबल है, दिखता है. तो अब फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ एसेट्स हुआ है. अब रीट्स भी आए हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे, गोल्ड ईटीएफ्स भी आए हैं. तो नाउ पीपल आर गोइंग थ्रू द फाइनेंशियल रूट टू इन्वेस्ट इन दीज एसेट क्लासेस. बट मुझे लगता है अभी भी 10-15 साल और लगेंगे. सी एक चीज और आप समझो, जो यूएस में होता है, वेस्ट में होता है, वो इंडिया में 20 साल बाद होता है. तो यूएस वगैरह में म्यूचुअल फंड्स वगैरह सब बहुत पॉपुलर हो गए थे, तो अब इंडिया में अब पॉपुलर हो रहे हैं. और 20 साल बाद काफी यंगस्टर्स लोग फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ मूव करेंगे. बहुत सारे लोग होंगे जो सिर्फ एक घर लेना है अगर जरूरत है, नहीं तो वो भी पेरेंट्स की तरफ से आ ही जाता है, यू नो, एस्टेट एज अ पार्ट ऑफ एस्टेट. तो बहुत लोग नहीं लेते हैं. तो आई फील इट विल बिकम एंड मोर कॉन्फिडेंस जब फाइनेंशियल मार्केट्स पे आएगा, मोर एंड मोर मनी इज गोइंग टू पोर इन, बिकॉज इट्स लिक्विड, पीपल वांट टू एंजॉय दिस. आप जब चाहे निकाल सकते हो, रेगुलेशंस है. तो ये रहा है अभी तक. सिंपल लैंग्वेज में रीट्स होते क्या है, एक्सप्लेन करोगे? बहुत सिंपल है. देखो, जैसे आपके पास ऑप्शन है, खासकर कमर्शियल प्रॉपर्टीज में, बहुत लोग इंडिया में कमर्शियल प्रॉपर्टीज खरीदते हैं और उसको भाड़े पे लगा देते हैं. 6% 7% आपको आता है, विच इज़ नॉट बैड, प्लस अप्रिशिएशन का भी चांसेस रहता है. बट आज बॉम्बे जैसी जगह में अगर आपको एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो फिर भी 1 करोड़ 50 लाख तो मिनिमम है, 1 करोड़ तक जाता है, हर किसी के पास नहीं है. तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसमें क्या होता है, आप 1 लाख 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए भी आप लगा सकते हो. और आपने वो एक तरह का म्यूचुअल फंड है, राइट? उसके अंदर वो जो स्पॉन्सर है, वो ऐसा 20 अच्छी कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं, और उससे जो रेंट आती है, तो सेबी का रूल है 90% जो भी उन्होंने कमाई की है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट टू द यूनिट होल्डर्स. तो आप 1 लाख लगाए, मैंने 3 लाख लगाए, उन्होंने 5 लाख लगाए, हम सब ने लगाए, उनके पास 500 करोड़ आ गए. 500 करोड़ से उन्होंने 5 बड़े बड़े टावर्स खरीद लिए 100 करोड़ के. अब उसमें से जो हर महीने रेंट आ रही है, उन्होंने इन्फोसिस को रेंट दिया, जो रेंट आ रही है वो उसका 90% उनको हर मंथ कंपल्सरी डिस्ट्रीब्यूशन करना ही है टू यूनिट होल्डर्स. तो आपके पास हर महीने ये क्वार्टरली साल का जो लगभग है 6 to 7% तक का यील्ड आ जाता है. एंड एक चीज याद रखो, यहाँ डाइवर्सिफाइड है. वहां आपने सिंगल आपकी प्रॉपर्टी पे था, और आपकी प्रॉपर्टी अगर 2 महीना खाली रही तो पूरा नुकसान हो जाता साल भर का, वो 6% से सीधा 3% पे आ जाता है. बट यहाँ 10 प्रॉपर्टीज है, एक प्रॉपर्टी नहीं गई है, तो 9 तो रेंटल पे ही है, प्लस वहाँ 5-5 साल की लीज होती है, अच्छे टेनेंट्स होते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है. यूएस वगैरह में ये बहुत पॉपुलर है, वेस्ट में 50 साल से है, इंडिया में लास्ट 5-6 साल से ही आए हैं. तो इंडिया में भी आने वाले टाइम पे अभी 3-4 रीट बड़े बड़े हैं, एम्बेसी रीट्स हैं, ब्रुकफील्ड है. इसको आप स्टॉक मार्केट पे खरीद और बेच भी सकते हो. अभी आ रहा है ना सत्वा का, एक आ सत्वा रहा है, का भी आ रहा बैंगलोर है, बैंगलोर correct. बेस्ड है. तो ये इंडिया में भी आना है. मैंने क्या बताया, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ रियल एस्टेट्स, राइट? बीकेसी में जितनी भी प्रॉपर्टीज है, नाउ दे आर पार्ट ऑफ द रीट.
यहाँ पे एक्सप्रेस टावर आपको शायद मैंने बताया था मेरा ड्रीम है उसमें जाने का, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ब्लैकस्टोन का रीट जो है। तो द ऑल दीज प्रॉपर्टीज बिकम पार्ट ऑफ द रीट एंड यू गेट द रेंटल इनकम, प्लस देर इज अ चांस ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन ऑल्सो उसमें, तो वो भी उसका भी फायदा होता है। टिकट साइज लोअर है, ट्रांसपेरेंसी है, लिक्विडिटी है, रेगुलेटेड है, इट मेक्स अफोर्डेबल फॉर अ कॉमन इन्वेस्टर। तो इसमें रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में आप खुद पैसा डालते हो? डू यू मैं नहीं डालता हूँ क्योंकि Okay. मैं आई एम नॉट अ पर्सन हु इज लुकिंग फॉर एन 8% 9% kind of return. That's why all my money is in equities through mutual funds. But somebody who wants to diversify from fixed deposits or looking for a regular monthly income, it's not a bad choice. और इसमें कैपिटल अप्रिसिएशन इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। तो अगर कैपिटल अप्रिसिएशन बहुत अच्छा हो रहा है तो देन रीट्स में जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो भी बढ़ सकता है, राइट? वो 8% का 13 हो सकता है, राइट? 13 थोड़ा स्ट्रेच हो गया, Okay. 8 का 10 कर दो। अच्छा, कैपिटल अप्रिसिएशन थोड़ा बढ़ सकता है क्योंकि प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन हुआ। देखो रीट्स में कैसा आप कैपिटल अप्रिसिएशन कर सकते हो, एक एनएवी होती है, सो रीट इज लाइक एन ईटीएफ। एनएवी जो आपकी होती है, बट चूंकि आप और मैं स्टॉक मार्केट में खरीद रहे हैं तो डिमांड एंड सप्लाई डिक्टेट करता है कि मार्केट प्राइस क्या है उसका। तो एनएवी कैन बी 100 रुपीज बट मार्केट प्राइस राइट नाउ इज ट्रेडिंग एट 110। तो मैंने तो 100 मान लीजिए उस वक्त नॉर्मल डिमांड सप्लाई था तो मैंने 100 रुपये पे एनएवी पे लिया। आज सडनली रियल एस्टेट का डिमांड बढ़ गया है तो द सेम एनएवी इज 100 बट ट्रेडिंग एट 110, तो मेरे को 10% अप्रिसिएशन वहां हो गया। तो इन दैट वे आई कैन अर्न 2% एक्स्ट्रा। योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम रीट शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑन द हायर साइड। अच्छा, इतना कम? इतना कम। आप वहां 12-15% सोच के आ रहे हो तो आप गलत आ रहे हो, बिकॉज द आइडिया इज टू अर्न रेंटल इनकम and not capital appreciation as a which is why I'm not a fan of REITs, but I like what SEBI's done. Abhi SM REITs bhi la rahe hain, so it's a good disruption in the commercial real estate space. But personally speaking, I'm glad something like this product exists now in India. Good for many people, but for my own personal investment option, I don't look at REITs. You wouldn't invest in REITs, no? I wouldn't. But I would recommend it to my investors जिनको they're happy with 7 to 8%, जिनको एक monthly आना चाहिए। हालांकि we can talk about SWP also, which is even still a better option than REITs, but it's not as bad. मतलब FD से better ही है, I would say. Why do you think people like Warren Buffett or even you said that even Mr. Nilesh Shah of Kotak AMC, they prefer equity over real estate? Good question, very good question. So let me straight away. So नीलेश शाह ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था, हालांकि ये डेट बहुत पुराना आर्टिकल है, बट उन्होंने समुद्र महल के ऊपर लिखा था, बिकॉज समुद्र महल इज समहाउ वेरी आइकॉनिक प्रॉपर्टी इन मुंबई, ये हमारे व्यूअर्स के लिए। तो इन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड में लिखा इक्विटी स्कोर्स ओवर रियल एस्टेट। तो उन्होंने क्या लिखा कि 1970s में समुद्र महल का जो रेट था 700 रुपये पर स्क्वायर फीट था, और 2011 में उसका भाव 1,07,000 रुपये पर स्क्वायर फीट हो गया। तो होता क्या है कुशल, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना वो ये भाषा में बात करते हैं, मैंने 700 रुपये में लिया था आज 1 लाख हो गया, कहाँ तुम्हारे म्यूचुअल फंड्स और ये। बट वो ये नहीं देखते कि 1970 में लिया था और आज 2020 में हम हैं, मतलब 50 साल हो गए हैं। तो 50 साल के पीरियड में समुद्र महल का रिटर्न वुड बी नॉट मोर देन 12%, राइट? आप CAGR में अगर दुनिया में आपको हर चीज, जैसे आपने इनसे पूछा कि आपका CAGR क्या रहा है, XIR क्या रहा है, आपने मेरे से पूछा, बिकॉज दैट्स लाइक टू लाइक कंपेरिजन। आप कोई भी एसेट क्लास दो, मुझे CAGR बताओ भाई क्या रहा है, दूध का दूध, पानी का पानी। तो इसमें CAGR was not more than 12%, right? And mind you, this is most iconic sea facing most property successful जिसका नाम आता है, एंड सारे हुजू उसमें रहते हैं। नीरव मोदी का भी बाय द वे एक फ्लैट था। सो ये समुद्र महल का रहा है। एंड ही सेज नीलेश, और ये उन्होंने उस वक्त लिखा था, मैं आपको जस्ट पढ़ के सुना रहा हूँ। सेंसेक्स इज अप 136 times in that same period, while Samudra Mahal was up 46 times only. अच्छा, 136 times? Yes. Oh, wow. ये पब्लिश आर्टिकल है 1970 to 2012-13 का। एंड माइंड यू, कोविड के बाद स्टॉक मार्केट हैज बीन ऑन द वे, बट साउथ मुंबई की प्रॉपर्टीज इतनी ज्यादा अप्रिशिएट नहीं हुई है। तो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि एज आइकॉनिक प्रॉपर्टी है समुद्र महल भी इतना अप्रिशिएट नहीं करती है, बट लोगों को लगता है अप्रिशिएशन हुआ है, वो एडजस्ट नहीं करते कि टाइम एंड इन्फ्लेशन टाइम एंड वो। नाउ जस्ट बिकॉज यू आस्क मी क्वेश्चन ऑन वॉरेन बफेट, सो वॉरेन बफेट सेज it is much harder to deal in real estate than stocks, as the deal negotiation takes a much longer time with multiple parties involved. He further believes that there are much more opportunities in stocks in the US compared to real estate. वो आज भी ये बात बोल रहे हैं, right? And सबसे मुझे जो डेंजर स्टेटमेंट लगता है रियल एस्टेट का, which he says this,
In real estate, every sentence is as important as a person. बहुत सही है. You know, you have to know how to read between the lines, right? In stocks, if somebody needs to sell 20,000 shares and the price is right, it's done in 5 seconds. And you don't know who is the buyer, who is the seller. Anonymously transaction हो जाता है. In real estate, it just begins when you agree on deals and they take forever. Deal खत्म ही नहीं होती है. हालांकि उन्होंने क्या बताया, उनके जो पार्टनर थे चार्ली मंगर was a real estate lawyer and he was a real estate fan in his early life. He made lot of money in real estate in California. But वो क्या लिखते हैं, Charlie enjoyed real estate transactions and he actually did a fair number of them in the last 5 years of his life. But I think if he had asked him to make a choice when he was 21, he would have chosen stocks. तो ये उन्होंने लिखा है. And as I said, now when you walk down to the New York Stock Exchange, you can do billions of dollars worth of business totally anonymous and you can do it within 5 minutes. So मुझे सबसे अच्छा यही लगता है कि and frankly my life I've always followed Ramdev ji and Warren Buffett and Charlie Munger और उन्होंने equities से wealth बनाया है, compounding की है and it has worked well for me in the last 15 years. So that's the reason why. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.